السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لی ہنٹ کی لکھی ہوئی پویم ابو بن آدم کے متعلق پڑھیں گے۔ ابو بن آدم جو کہ ایک اچھے اور نیک انسان تھے، وہ خدا کے ایک ولی تھے، اور نہ صرف وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، بے پناہ عبادت کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی ذات یعنی کہ انسان ذات کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دکھ درد میں کام آتے تھے، ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتے تھے، اور ہر وقت ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابو بن آدم وہ اپنی خوابگاہ میں سوئے ہوئے تھے اور اپنی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتے کیا ہے کہ ان کی خوابگاہ میں ایک سفید رنگ کی روشنی ہے۔ روشنی اتنی تیز اور سفید اور چمکتی دمکتی ہے جیسے کہ چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ پوئٹ نے اس روشنی کو للی فلاور یعنی کہ یاسمین کے پھولوں سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ پوئٹ کہتے ہیں کہ ایک خوابگاہ میں اتنی سفید اور چمکتی روشنی تھی جیسے کہ چاند کی روشنی یا یاسمین جو کہ ایک سفید اور چمکتا دمکتا کھلتا ہوا پھول ہوتا ہے، بالکل ویسی روشنی تھی۔ ابو بن آدم نے جب اپنے خوابگاہ میں اس طرح کی روشنی دیکھی تو وہ اپنے بستر سے اٹھے۔ ان کی نگاہ ایک فرشتے یعنی کہ اینجل پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ اینجل وہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنی ایک سنہری کتاب گولڈن بک میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ خاموشی کے ہونے کے باوجود ابو بن آدم جو ہے وہ اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے ولی تھے اور ایک مذہبی انسان تھے۔ فرشتے کو دیکھ کر وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہادرانہ انداز میں وہاں پہنچتے ہیں اور فرشتے سے پوچھتے ہیں، اس اینجل سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس کی خوابگاہ میں اس سنہری کتاب میں کیا لکھ رہا ہے۔ اینجل نے ابو بن آدم جو کہ خدا کے ایک ولی تھے، سینٹ تھے، پوائس مسلم تھے، ان کی طرف پیار بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جو خدا تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کرتے ہیں۔ ابو بن آدم جو کہ خدا کی عبادت اور ان کے ولی تھے، انہوں نے اینجل سے، فرشتے سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا ان کا نام بھی اس سنہری گولڈن بک میں ہے کہ نہیں۔ اینجل نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ کا نام اس گولڈن کتاب میں بک میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بن آدم نے کسی بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا یا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس فرشتے سے، اس اینجل سے ریکویسٹ کی، کہ درخواست کی کہ آیا کہ وہ ان کا نام یعنی کہ ابو بن آدم کا نام کیا وہ اس فہرست میں، کیا وہ اس لسٹ میں لکھیں گے کہ جو لوگ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی کہ انسان ذات کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ابو بن آدم کی اس درخواست کو اینجل نے، فرشتے نے قبول کیا اور انہوں نے ان کا نام اس کتاب میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ وہاں سے وینشڈ ہو گئے یعنی کہ غائب ہو گئے۔ اگلی رات پھر اینجل، فرشتے ان کی خوابگاہ میں آئے اور بالکل ویسی ہی چمکتی دمکتی ہوئی سفید روشنی کے ساتھ وہ وہاں پر نازل ہوئے۔ ابو بن آدم پھر بیدار ہوئے اپنی نیند میں سے اور دیکھا کہ آج پھر وہ فرشتہ وہاں پر آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو بن آدم اس فرشتے سے پوچھتے کہ آج وہ کیوں وہاں پر آئے ہوئے ہیں، فرشتے نے خود ہی وہاں پر ابو بن آدم کو جواب دیا اور وہ سنہری کتاب ان کو دکھائی، وہ فہرست دکھائی
जिस फहरिस्त में उन लोगों के नाम दर्ज थे, जिस लिस्ट में फहरिस्त में उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने, खुदा ताला की ज़ात ने उनके ऊपर अपनी मेहरबानी, अपनी रहमतें नाज़िल की थी। और आबू बैन आदम ये देखकर बहुत हैरान हुए कि उनका नाम भी उस फहरिस्त में था और उनका नाम उस फहरिस्त में सरे फहरिस्त था, यानी कि सबसे ऊपर लिखा हुआ था, टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ था। ये देखकर अबू बिन आदम हैरान भी हुए और बहुत ज़्यादा खुश हुए। स्टूडेंट्स, इससे हमें सबक ये मिलता है कि खुदा ताला की ज़ात उन लोगों से बेपनाह मोहब्बत करती है जो खुदा ताला की बनाई हुई मखलूक, पैदा की हुई मखलूक के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनके दुख दर्द में काम आते हैं। खुदा की ज़ात हमसे सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं चाहती है कि हम लोग खुदा की इबादत करें और उसकी इबादत करने के बावजूद हम वो पैगाम, वो मैसेज भूल जाएं कि मखलूक की इबादत, मखलूक की खिदमत भी एक इबादत है। खुदा ताला की ज़ात के साथ अच्छे तरीके से पेश आना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉड लव दोज हु लव हिज मैनकाइंड और हिज ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट्स, पोएम की जो समरी है वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट वाइज, लाइन टू लाइन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Abu ben Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace। यहाँ पर इन दो लाइनों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो पोएट है वो उस अबू बिन आदम की जो कुंबा है उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वो दुआ करते हुए कह रहे हैं कि काश कि अबू बिन आदम का जो कुंबा है, जो ख़ानदान है, वो हमेशा आबाद रहे, हमेशा आबाद रहे और बढ़ता रहे। वो अबू बिन आदम अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। अवोक माने कि बेदार होना। वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। वन नाइट अबू बिन आदम अवोक यानी कि गॉट अप फ्रॉम हिज डीप ड्रीम ऑफ पीस। He got up from sleeping. While he was sleeping, he was watching, he was seeing a dream. He suddenly awoke from that dream and saw माने कि देखना, and saw within the moonlight in his room. Abu bin Adam, he got up, he awoke, and what did he saw? He saw there the moonlight. It came over there in his room. अबू बिन आदम उठते हैं और देखते क्या है कि वो देखते हैं कि उनकी ख्वाबगाह में चाँद की रोशनी है, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। वो कहते हैं कि वो देखते हैं कि उनकी ख्वाबगाह में चाँद की सफ़ेद रोशनी है, बिल्कुल इस तरह की सफ़ेद रोशनी जैसे कि एक खिलते हुए यास्मीन के फूल की होती है। यास्मीन का फूल क्योंकि जो है सफ़ेद होता है, चमकता दमकता है, जब वो खिलता है, जब वो ब्लूमिंग करता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और महकता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल वैसी ही महकती हुई खूबसूरत सी रोशनी उसकी ख्वाबगाह में मौजूद थी। देखते क्या है उस रोशनी में, वहाँ पर एन एंजिल, व्हाट डिड ही सॉ देयर? एन एंजिल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गॉड। अबू बिन आदम देखते हैं कि कोई एंजिल है, कोई एक फरिश्ता है जो कि अपनी सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गॉड। कहते हैं कि कोई एक एंजल है, फरिश्ता है जो अपनी सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड। बढ़ती हुई खामोशी, क्योंकि रात का टाइम था और खामोशी थी, उस खामोशी में अबू बिन आदम जो है वो काफ़ी बहादुराना फैसला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड टू द प्रेजेंस द रूम ही सैड। और एंजल यानी कि फरिश्ते की मौजूदगी में वो वहाँ गए और उन्होंने उनसे कहा, ही सैड, उन्होंने उनसे कहा, व्हाट, क्या,
वॉट राइटेस्ट दो, कि आप क्या लिख रहे हैं। द विजन, विजन का मतलब होता है एक्स। द विजन रेस्ट इट्स हेड, उस फरिश्ते ने अपनी गर्दन को जो है वो ऊंचा किया, फरिश्ते ने अपनी गर्दन ऊंची की। एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और प्यार भरी और मीठी निगाहों से अबू बिन आदम की तरफ देखते हुए कहा। एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, मीठी निगाहों से, प्यार भरी निगाहों से अबू बिन आदम की तरफ देखते हुए कहा। आंसर, यानी जवाब दिया। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, फरिश्ते ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। एंड इज माइन वन, फिर अबू बिन आदम ने कहा कि आया कि क्या मेरा नाम भी यहाँ पर है कि नहीं। सैद अबू, अबू ने कहा नाई नॉट सो, फरिश्ते ने कहा नहीं, आपका नाम यहाँ पर नहीं है। रिप्लाइड द एंजिल, एंजिल ने जवाब दिया। अबू स्पोक मोर लो, अबू अब भी जो है वो धीरे लहजे में बोलते हैं और कहते हैं कि बट चेयरली स्टिल, लेकिन अब भी वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बट चेयरली स्टिल एंड सेड आई प्रे देन, प्रे दी देन, लेकिन अब भी खुश थे और उन्होंने कहा कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। आई प्रे माने कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आई प्रे दी देन, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नाम लिखें, आप लिखें उस फरिश्त में जो कि खुदा की मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दैट लव्स हिज फेलो मैन, हिज यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए पोएम ने, लेकिन लिखा हुआ है, लिखी हुई है पोएम क्योंकि क्रिश्चियन ने लिखी हुई है। हम जो है खुदा के लिए यहाँ पर अगर कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल होते हैं। दैट लव्स हिज फेलो मैन, के जो है वो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करता है। एंजिल ने अबू बिन आदम की उस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया और क्या कहा। द एंजिल रोट, एंजिल ने, फरिश्ते ने लिखा। एंड वेनिस्ड, और गायब हो गया, यानी कि चला गया, वहाँ से अबू बिन आदम की ख्वाबगाह से चले गए। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, और अगली रात वो दोबारा चमकती हुई दमकती हुई रोशनी के साथ वहाँ पर दोबारा आए। एंड शोड द नेम्स होम लव ऑफ गॉड हैड बीन लेफ्ट, और वहाँ आकर उस फरिश्ते ने अबू बिन आदम को आकर वो फहरिस्त दिखाई, वो लिस्ट दिखाई जिसमें कि खुदा ताला ने उन लोगों के ऊपर अपनी बिलेस्ट यानी कि अपनी रहमत नाजुल की थी। एंड लो व्हेन आदम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, और उस फहरिस्त में अबू बिन आदम का जो नाम था वो सरे फहरिस्त था, सबसे ऊपर था, टॉप ऑफ द लिस्ट था। तो स्टूडेंट, आपने ये सारी पूरी पोएम पढ़ ली और मेरे को यकीन है कि ये पोएम आपको समझ में आ गई है। आपने देखा कि खुदा ताला ने अबू बिन आदम के ऊपर रहमत नाज़िल की और खुदा ताला ने अबू बिन आदम का नाम मुंतखब किया सबसे ऊपर, सबसे पहले, यानी कि उनके नाम को सरे फहरिस्त रखा। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि खुदा ताला की ज़ात हम सबसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो लोग ही जो होते हैं खुदा के करीब रहते हैं, वो लोग हमेशा खुदा के करीब रहते हैं जो लोग खुदा ताला की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, खुदा ताला की ज़ात से, खुदा ताला की जो मखलूक है, खुदा ताला के जो लोग हैं, इंसान ज़ात हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो खुदा भी अपनी रहमत, अपनी जो रहमत होती है, जो खुदा की करामतें होती हैं, वो उनके ऊपर नाज़िल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबको खुदा ताला के इबादत के साथ साथ खुदा की मखलूक के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए और किसी को बिला वजह में अजियत नहीं देनी चाहिए और लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। मेरे को यकीन है कि ये पोएम आपको समझ में आ गई है और कमेंट्स ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दीजिए।